Now let us continue. Hello, everybody is okay? Yes, sir. Okay, then continue with chapter 3, that is general condition of services. Chapter 3 from page number 21 to page number 38 तक है. Total rule 10 to FR 18 तक है. FR 10 start with fundamental rule 10. Except as provided by this rule, no person may be appointed in India to a post in government service without a medical certificate of health. कोई भी अपॉइंटमेंट बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के नहीं होगा गवर्नमेंट में. द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रिस्क्राइब द फॉर्म इन विच मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी प्रिपेयर्ड. गवर्नमेंट रूल बनाएगी किस तरह से मेडिकल होगा एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट के बाद. एंड द पर्टिकुलर मेडिकल और अदर ऑफिसर्स बाय होम दे शुड बी साइंड. किसके द्वारा साइन किया जाएगा? लेवल के हिसाब से होता है. ग्रुप सी के लिए medical officer is sufficient. For group A and group B gazetted, there is a medical board that will test. It may, in individual cases, dispense with the production of a medical certificate, may by general order exempt any specified class of government servant from the operation of this rule. कुछ class of government servant को exempt किया जा सकता है by the order of the government. तो rule 10 में है हमारा medical examination is must before joining a government post, that is under fundamental rule 10, and some post or individual may be exempted by the order of the government. तो यह है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना है ज्वाइनिंग में. फंडामेंटल रूल 10 हो गया. एक है जीआईडी नंबर 5. एप्लीकेबिलिटी टू प्रमोशन टू गजेटेड पोस्ट. देखते हैं इसमें क्या ये ऑर्डर है आपका 1966 का ऑर्डर है. Who are promoted to hold gazetted posts and who are required to undergo medical examination by the appropriate medical authority, it has been decided that the administrative ministries and the CAG may exercise powers to authorize in relaxation of FR10, draw of pay and allowance without production of fitness certificate in respect of such government servant for a period not exceeding 2 months, subject to the condition that if the person concerned is subsequently found medically unfit, he should be reverted to the lower post from which he has been promoted after the expiry of 1 month from the date of communication of him of finding of medical examining medical authority. If no appeal for second medical examination is made by him during this period or after the case of second medical examination is finally decided, if such an appeal is made or accepted, this condition should clearly be stated in the relevant order of promotion to the gazetted post. ये था 1966 का ऑर्डर था कि गजेटेड पोस्ट के लिए विद इन 2 मंथ मेडिकल कराना है एक प्रमोशन होगा तो. एंट्री इन सर्विस बुक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट. फिटनेस का मेडिकल सर्टिफिकेट सर्विस बुक में एंट्री करना है. that is GID 7. Now fundamental rule 11. रिवाइज सर्विस बुक में सर्टिफिकेट एंड अटेस्टेशन इस तरह से अपडेट करना है. नेक्स्ट इज फंडामेंटल रूल 11. अनलेस इन एनी केस इट बी अदरवाइज distinctly provided, the whole time of a government servant is at the disposal of the government which pays him. FR 11 का मीनिंग है you are bound to duty the government 24/7/365. Whole government servant at the disposal of the government which pays him.
and he may be employed in any manner required by proper authority without claim of additional remuneration, whether the services required of him are such as would ordinarily be remunerated from general revenues, from a local fund or from the funds of a body incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the government. FR 11 कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट आर बाउंड टू ड्यूटी 24/7/365 and for that no additional remuneration may be claimed, but such some works are, कुछ काम के लिए स्पेशल कुछ पेमेंट किया जा सकता है either by the government or by the anybody from the government revenue, कुछ काम के लिए जैसे हमारा ऑनरेडियम मिलता है आईओपीओ को, उस तरह से कुछ कुछ कारण के लिए से ओवर टाइम अलाउंस मिलता है ऑपरेटिव में, तो ये सब है, बट जनरली ड्यूटी है 24/7/365 एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा कभी भी बुलाया जा सकता है। तो FR 11 वेरी इंपॉर्टेंट है। FR 12 आपका डिलीट हो गया है 1998 में, FR 12 डिलीट हो गया। FR 12A, unless in any case it is otherwise provided in these rules, a government servant on acquiring a lien on a post will cease to hold the lien previously acquired on any other post. देखिए, for any government servant there is a lien on only one post. अगर पहले से किसी पोस्ट पे गवर्नमेंट सर्वेंट का लीन है और फिर दूसरे पोस्ट पे लीन हो गया है, तो पहले पोस्ट वाला जो लीन है वो एबोलिश हो जाएगा। वन गवर्नमेंट सर्वेंट हैव लीन ऑन ओनली वन पोस्ट, एक ही पोस्ट पे लीन रहेगा। दो पोस्ट पे अगर लीन आता है तो एक पोस्ट का लीन एबोलिश हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कोई पीए कैडर में है, उनका प्रमोशन AAO में हो गया, तो जैसे AAO में ज्वाइन करेंगे और फिर वहां से AO में कहीं भी चले जाते हैं तो AAO पोस्ट पे उनका लीन रहेगा, पीए पोस्ट का लीन उनका समाप्त हो जाएगा। तो डेट डिपेंड्स अंडर फंडामेंटल रूल 12A। सर यस सर, ये जो लास्ट ईयर AAO का एग्जाम हुआ था सर, इसमें क्या फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के कारण AAO में सिलेक्शन भी हो गया और AAO में 3 महीने नौकरी भी कर ली, फिर इनको रिवर्ट कर लिया, तो वापस उसी पोस्ट पे आके काम कर रहे हैं, तो फिर लीन खत्म कहाँ हुई? कन्फर्म होने के बाद होगा ना, 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होता है। जैसे आप ग्रुप सी में हैं, ग्रुप सी का कोई भी एम्प्लॉय है, ग्रुप बी में जैसे ही जाएगा तो फिर उसका प्रोबेशन पीरियड होगा। ग्रुप सी टू ग्रुप सी, सेम ग्रुप में अगर प्रमोशन होगा तो कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं है, बट डिफरेंट ग्रुप में 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड है। अगर वो 2 साल वहां पूरा कर लेते फिर उनको रिवर्ट करना मुश्किल हो जाता। वो 2 इयर्स से कम प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं किए थे, इसलिए उनको आसानी से रिवर्ट कर दिया गया। अगर जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है 2 इयर्स कंप्लीट कर लेता है AAO में ज्वाइनिंग के बाद, तो वहां पे जो 2 इयर्स कंप्लीट कर लिए AAO में, तो मान लीजिए 2 इयर्स में उनका पे कितना हो गया, 50,000 हो जाएगा, 50,500। तो अगर 2 इयर्स के बाद अगर रिवर्ट करेंगे एनी ऑफ द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, तो उनको सेम पे देना पड़ेगा, लोअर पोस्ट रहेगा। फिर भी एक बार कॉन्फर्मेशन पूरा कर लेने के बाद लोअर पोस्ट पे रिवर्ट करने के बाद भी उनको मिनिमम वही पे देना पड़ता है जो उनको पहले मिल रहा था। तो बिफोर प्रोबेशन पीरियड रिवर्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक तरह से जैसे टेम्पोररी सर्विस होता है ना, टेम्पोररी सर्विस रूल 1965, प्रोबेशन पीरियड के टाइम उस पद के लिए टेम्पोररी सर्विस ही है। बट पहले जो उनका था, तो आपका ये केस था कि लीन समाप्त हो जाएगा, तो लीन 2 इयर्स तक रहेगा। जब वो कंफर्म हो गए वहां पे तो लीन समाप्त हो जाएगा आफ्टर कंफर्मेशन। 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड अभी है। ग्रुप चेंज होने पे ग्रुप सी से बी में जाएंगे, तो अगर ग्रुप सी से सी में रहते हैं तब कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है। ग्रुप बी से ग्रुप ए में जाएंगे फिर प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स का होगा। तो ये प्रोबेशन पीरियड जो है इसके बाद फाइनली कंफर्म होता है वो आपका जो भी पद हो। तो ये है यहाँ पे। ओके सर। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को रिवर्ट किया गया था क्या? देखिए कुछ लोग रिवर्ट हुए ना। हाँ, कुछ लोग खुद रिवर्ट हुए अपना एप्लीकेशन देके। हाँ। क्या हुआ एक्चुअली, क्या कारण हुआ सर कि वो पिछली बार क्या हुआ सर कि इनको ने चेकिंग की ही नहीं सर कई सर्किलों में, और जो जिनकी क्वालिफिकेशन थी नहीं, मतलब एज लिमिट थी नहीं, सर्विस की लिमिट थी भाई 8 ईयर 7 ईयर ऐसे,
तो कई लोग फ्रेश लोगों ने भी भर दिया, 5 साल वालों ने भी भर दिया, उनका सिलेक्शन हो गया। और उनमें जल्दबाजी थी, उस समय कोर्ट केस चल रहे थे, इनको ज्वाइनिंग दे दी, जबकि ये नियम था डायरेक्टरेट, वहां से नियम निकला था कि इनको 1 महीने के अंदर वो सारी चेकिंग करनी है, कंफर्मेशन करना है, लेकिन इन्होंने किया नहीं। 3 दिन 4 4 5 5 महीने चले। तो जो केसेस आए हैं धीरे धीरे, जैसे इन्होंने हमारे जो जोधपुर में रीजन है, मैडम बैठते हैं, उन्होंने क्या एससी की जगह एसटी कैटेगरी भर दिया था, उनको रिवर्ट किया, लेकिन उनको 14 की चार्जशीट भी दी है सर। हाँ, वो तो फ्रॉड हो गया ना, कैटेगरी चेंज करना तो फ्रॉड ही है। 14 की चार्जशीट भी दी गई। हाँ, उसमें बहुत सारा क्लॉज था जिसके कारण काफी दिक्कत हुआ था। काफी लोग 9 ईयर से बिलो सर्विस वाले भी रिक्रूट हो गए थे। हमारे यहाँ तो हैं अभी 2 4 लोग। हमारे बिहार सर्कल में किसी को रिवर्ट नहीं किया। अब कंडीशन क्या था ये पता नहीं, बट यहाँ पे भी कुछ लोग थे जो रिवर्ट नहीं हुए हैं। ये सब है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस के। कुछ जगहों पे जो 9 ईयर से बिलो वाले थे उनको भी अलाउ कर दिया गया, कुछ जगह नहीं किया गया कुछ सर्किलों में। तो ये सब केस चल रहा है, बहुत सारे केस तो फाइनल हो गए, बट प्रोबेशन पीरियड अब कंप्लीट हो गया। अब मुश्किल है किसी को रिवर्ट करना, क्योंकि रिवर्ट करने के बाद भी सेम पे देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट पे बोझ हो जाएगा, और जो अथॉरिटी करेगा फिर वहां पे दिक्कत होगा। तो इसलिए अब मुश्किल है, अब किसी को रिवर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रोबेशन पूरा हो चुका। कुछ लोग तो सेल्फ अपना रिक्वेस्ट दे करके फिर वापस आ गए अपने पद पे, जो घर से दूर चले गए थे उन लोग, वो लोग काफी लोग आए हैं। ठीक है, FR11 हो गया, FR12A हो गया। नाउ FR13। देखिए ये एक GID है। FR12 के बाद कॉन्फर्मेशन इन ए सर्विस कैडर इज tantamount टू एक्वायरिंग ए लीन ऑन द पोस्ट। वही है, कॉन्फर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद लीन फाइनल होता है। Next is FR13. FR13, unless his lien is suspended under Rule 14 or transferred under Rule 14B, a government servant hold substantively a permanent post retains a lien on that post. जब तक लीन सस्पेंड नहीं होगा या ट्रांसफर नहीं होगा, रूल 14 जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक उनका लीन उस पोस्ट पे रहेगा। देखिए रूल 13 के अंदर ये है, लीन ऑन डेट पोस्ट वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ डेट पोस्ट, जब वो ड्यूटी कर रहे हैं, वाइल ऑन फॉरेन सर्विस होल्डिंग ए टेम्पोररी पोस्ट और ऑफिसिएटिंग। देखिए 2 साल प्रोबेशन में है तो टेम्पोररी पोस्ट ही हुआ, तो टेम्पोररी पोस्ट होल्ड करेंगे तो पहले वाला जो परमानेंट पोस्ट है उस पर लीन रहेगा। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफर उनका लीन रहेगा टू अनदर पोस्ट अनलेस ही इज ट्रांसफर्ड अलोंग विद हिज टाइटल टू द पोस्ट। अगर लीन ट्रांसफर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इफ लीन नॉट ट्रांसफर्ड देन द लीन विल कंटिन्यू ऑन द परमानेंट पोस्ट। वाइल ऑन लीव, while under suspension, ये सारे केस में 5 केस है। In this case, lien will continue on the permanent post held by that government servant. Provided that no lien of a government servant shall be retained where a government servant has proceeded on immediate absorption basis on a post or service outside his service। जहां पे वो immediate absorption में चले गए हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, outside his service post cadre in the government from the date of absorption। date of absorption से उनका लीन समाप्त हो जाता है। सेकेंड है ऑन फॉरेन सर्विस डिप्यूटेशन बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट। देखिए डिप्यूटेशन पे है तो उनका लीन रहेगा, फॉरेन सर्विस में भी लीन रहेगा, बट लिमिट है, लिमिट से अगर ज्यादा होगा तो उनका लीन समाप्त हो जाएगा। अंडर द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिना अगर ज्यादा दिन उनका डिप्यूटेशन या सर्विस फॉरेन सर्विस पे रहते हैं विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, देन लीन विल बी इंड, लीन समाप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा टोटल रूल 13। GID है रिटेंशन ऑफ लीन इन सिविल पोस्ट व्हेन कॉल्ड टू आर्मी सर्विस। आर्मी सर्विस के लिए जब बुलाया जाएगा और वहां पे जाएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए को, तो जब तक वो आर्मी सर्विस में है लीन विल कंटिन्यू ऑन सिविल पोस्ट। आर्मी स्पेशल सर्विस आ गया, वहां पे जा रहे हैं तो उनका लीन कंटिन्यू रहेगा। Retention of lien in parent department in case of government servant getting employed in other department। अदर डिपार्टमेंट में जाते हैं उससे तब तक उनका पेरेंट डिपार्टमेंट में है उनका लीन रहता है, जो टेक्निकल रेजिग्नेशन देके जाते हैं। जनरल केस में 2 इयर्स है, 1 ईयर का एक्सटेंशन ले सकते हैं, 3 इयर्स तक लीन इस केस में रहता है। डिपार्टमेंट चेंज करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। तो
तो ये हो गया। नाउ FR14 इज डिलीटेड। ये बहुत पुराना है, FRSR 21 का है। इसको अगर आप लोग देखेंगे FRSR रूल कब इनेक्ट हुआ, तो ये हमारा 1 जनवरी 1922 से ये रूल चल रहा है। इसलिए इसमें बहुत सारा रूल ऑब्सोलीट हो गया, इसलिए उनको डिलीट किया गया है काफी सारे रूल को। तो इसी तरह रूल 14 भी डिलीट है। रूल 14A देखते हैं हम लोग। रूल 14A, except as provided in Rule 13 and Clause D of this rule, a government servant lien on a post may in no circumstance be terminated if the result will be to leave him without a lien upon a proper post. जब तक किसी दूसरे पोस्ट पे लीन नहीं हो जाता तब तक पहले वाले परमानेंट पोस्ट का लीन समाप्त नहीं होगा। ये रूल है FR14A। जब तक उसका न्यू पोस्ट पे लीन आएगा नहीं, मतलब परमानेंट पोस्ट नहीं होगा, तब तक प्रीवियस पोस्ट पे लीन विल बी कंटिन्यूड। इसका एक्सेप्शन वही था जब डिप्यूटेशन और फॉरेन सर्विस लिमिट एक क्रॉस कर जाता है गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा, और एक और था एब्जॉर्प्शन में चले जाते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट एनी अदर डिपार्टमेंट और PSU में, तो विथ इफेक्ट फ्रॉम सेम डेट से उनका लीन टर्मिनेट हो जाता है। तो ये केस है FR14A का D। ए गवर्नमेंट सर्वेंट लीन ऑन ए पोस्ट shall stand terminated on his acquiring a lien on another post outside the cadre on which he is born। जैसे ही उसके न्यू पोस्ट पे लीन होगा, प्रीवियस लीन समाप्त हो जाएगा। ये तो पहले भी था रूल 13 में भी, रूल 14 में भी यही है। 14A। आफ्टर दैट 14B। Subject to provision of Rule 15, the President may transfer to another post in the same cadre the lien of a government servant who is not performing the duties of the post to which the lien relates। रूल 14B के तहत द प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं सेम कैडर में गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो लीन तो कंटिन्यू रहेगा। दिस इज अंडर रूल 14B। रूल 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ लेटेस्ट चेंज किया गया है रूल 15A में। 15A में क्या कहता है, द 15A रूल FR15 है ना, इसी के तहत ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट को वन प्लेस टू अनदर और वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट, और सेम पोस्ट सेम कैडर इन डिफरेंट प्लेसेस। द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर। एक पोस्ट से दूसरे जगह पे प्रेसिडेंट ट्रांसफर करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को अंडर रूल 15A टू अनदर प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट ऑन अकाउंट ऑफ इनएफिशिएंसी मिसबिहेवियर। इनएफिशिएंसी और मिसबिहेवियर पे नहीं कर सकते इस रूल के तहत, और ऑन हिज रिटर्न रिक्वेस्ट। इस दोनों के अलावे जो प्रेसिडेंट का ट्रांसफर का पावर है गवर्नमेंट का, वो FR15A के तहत ही आता है। ट्रांसफर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट। A government servant shall not be transferred to, or except in the case covered by Rule 49, appointed to officiate in a post carrying less pay than the pay of which he holds a lien। जिस पोस्ट का लीन है गवर्नमेंट सर्वेंट का, उससे लेस पे वाले पोस्ट पे ट्रांसफर नहीं किया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांस। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस है जिसमें लोअर पोस्ट पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। लोअर पोस्ट पे जब भी ट्रांसफर होगा तो दो है। अगर जो उनका अपर पोस्ट है उसमें उनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट है, तो अगर उनको लोअर पोस्ट पे ट्रांसफर किया जाता है तो पे उनका प्रिजर्व हो जाएगा। जो पे मिल रहा था अपर पोस्ट पे वही लोअर पोस्ट पे भी मिलेगा। इफ पीरियड ऑफ प्रोबेशन इज नॉट कंप्लीटेड, देन उनका वही पे होगा जो पहले वाले पोस्ट पे था, लोअर पे ही मिलेगा उनको। तो ये है लोअर पे ट्रांसफर करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन। FR15 है, अभी लेटेस्ट रिवाइज हुआ है, तो इसमें वही है कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेने के बाद पे रिड्यूस नहीं किया जाएगा, बट स्पेशल ऑर्डर है। जब तक मिनिस्ट्री का ऑर्डर नहीं हो तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में ही प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेने के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट को लोअर पोस्ट पे ट्रांसफर किया जाता है। तो ये था FR15A। नेक्स्ट इज FR16।
A government servant may be required to subscribe to a provident fund, a family pension fund or a similar fund in accordance with which rule the president of India order. GPF वगैरह को सब्सक्राइब करना है, जो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर रहेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये FR 16 आता है, ये जनरल रूल्स है। नेक्स्ट FR 17(1), subject to any exceptions specifically made in these rules and to the provision of subrule 2, an officer shall begin to draw the pay and allowance attached to his tenure of a post with effect from the date when he resumes the duties of that post and shall cease to draw them as soon as he ceases to discharge those duties. अगर किसी को ऑफिशिएटिंग एडहॉक पे प्रमोशन मिलता है या फिर टेन्योर पोस्ट पे जाता है, तो उस पोस्ट के लिए अगर कुछ स्पेशल पे है या कुछ डिफरेंस पे है, तो वो पे उनको मिलेगा जब तक वो उस पद पे ड्यूटी करेंगे। तो that comes under FR 17(1). Provided that an officer who is absent from duty without any authority shall not be entitled to any pay and allowance during the period of such absence. देखिए, कुछ ऑफिसर ऑफिशियल अनऑथराइज्ड एब्सेंस पे रहेंगे तो उनको कोई मतलब कि उनको पे एंड अलाउंस नहीं मिलेगा अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड के लिए। ये भी आपका 17A में आता है। 17(1) में 17(2) में है द डेट फ्रॉम विच ए पर्सन इज रिक्रूटेड ओवरसीज, ओवरसीज मतलब फॉरेन कंट्री में रिक्रूट हो जाते हैं, shall commence to draw pay on first appointment shall be determined by the general or special order of the authority by whom he is appointed. जैसे ही if a government servant is appointed in overseas, then the authority which appoint, जो appoint करता है, they will pay the pay and allowance from the first day of employment and the pay of the government will cease after the last working day. तो ये था हमारा 17 का 2। कुछ ऑडिट इंस्ट्रक्शन है आफ्टर दैट 17A, वेरी इंपॉर्टेंट 17A। (17A) without prejudice to the provision of Rule 27 of CCS Pension Rule 1972, a period of unauthorized absence in case of employees working in industrial establishments during a strike which has been declared illegal under the provision of Industrial Dispute Act. देखिए, कोई इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है तो उसको FR 17A करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में जो स्ट्राइक है वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो उसको अनऑथराइज्ड एब्सेंस को ब्रेक इन सर्विस हो जाएगा, वहां पे FR 17A लागू करेंगे। तो नेक्स्ट केस इज इन द केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन इन कॉम्बिनेशन और इन concerted manner during such as during a strike without any authority from a valid reason to the satisfaction of the competent authority. ये competent authority पे डिपेंड है कि वो FR 17A लागू करेगा या नहीं करेगा। करेगा तो ब्रेक इन सर्विस होगा, नहीं करेगा तो फिर डाइज नॉन या नो वर्क नो पे होगा। थर्ड केस इज इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय रिमेनिंग एब्सेंट अनऑथराइज्ड और डिजर्टिंग ए पोस्ट। इंडिविजुअल एम्प्लॉय भी अगर एन एब्सेंट है, अनऑथराइज्डली है या डिजर्ट पोस्ट कर रहा है, अपने पोस्ट पे काम नहीं कर रहा है, तो अथॉरिटी हैव द पावर टू इन्वोक FR 17A, दैट इज ब्रेक इन सर्विस। shall be deemed to cause an interruption or break in service of the employee unless otherwise decided by the competent authority for the purpose of LTC, quasi permanence, eligibility for appearing in departmental exam for which a minimum period of service is required. देखिए, FR 17A हो गया मींस ब्रेक इन सर्विस, बट जो अथॉरिटी है वो आपको LTC के लिए, परमानेंसी के लिए, फॉर परमानेंसी ऑफ सीट्स मीन्स जो कन्फर्मेशन एग्जाम होता है 2 इयर्स के बाद जो परमानेंसी का होता है, 2 इयर्स से पहले टेम्पोररी रहता है, वो परमानेंसी का मेमो के लिए, और एलिजिबिलिटी टू सीट इन एग्जाम, डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए जो मिनिमम पीरियड होगा। अगर ब्रेक इन सर्विस हो गया 17A तो आपको तो नहीं दे पाएंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम, बट द अथॉरिटी आपको क्लियरली ऑर्डर दे सकता है कि दिस ब्रेक इन सर्विस विल नॉट काउंट फॉर अपीयरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जाम, LTC और अदर्स। तो इस तरह से हो सकता है। देखिए, ब्रेक इन सर्विस आपका सिर्फ 17A के तहत अगर पावर यूज किया जाएगा तभी होगा। स्ट्राइक के केस में नो वर्क नो पे या डाइज नॉन हो गया तो उससे सिर्फ
वो जो डे डाइजनॉन होता है वो आपका घटता है, नॉट ब्रेक नहीं होता है। बट जो इंडस्ट्रियल एक्ट, जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे स्ट्राइक इलीगल है, वहां कोई स्ट्राइक करता है तो 17A ही दिया जाता है जनरली केस में। तो ये 17A है सारा ब्रेक इन सर्विस। क्लियर है 17A? नेक्स्ट इज FR 18। कह रहा सर, हाँ बताइए। एक्सप्लेनेशन है ना सर 17A किसका? का, एक्सप्लेनेशन है ना तो 17A का सर। 17A, हाँ एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन है फॉर पर्पसेस ऑफ दिस रूल स्ट्राइक इंक्लूड्स ए जनरल, टोकन, sympathetic और एनी सिमिलर स्ट्राइक एंड ऑल्सो पार्टिसिपेशन इन बंद और इन सिमिलर एक्टिविटी। स्ट्राइक का डिफिनेशन है ये। और एक्सप्लेनेशन 2 है, इन दिस रूल द टर्म कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी मीन्स द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी यहाँ पे अपॉइंटिंग ऑथोरिटी होंगे, वही आपके ऑर्डर देंगे। Sir, हाँ, if that Dyson period is condoned by the competent authority, whether it will means consider for qualifying service? yes, if condoned by the competent authority, then it will qualify for qualifying service. It will be considered for qualifying service. Yes, yes. Okay. Next is FR 18. One thing here, GID number 4, permission to appear in departmental examination not allowed only when FR 17 disability are imposed. इसके लिए कुछ explanation आया था 1989 में। This is further to clarify that according to the existing instruction, where notice has been issued to the concerned official for imposition of disabilities under provision of FR 17A and final order imposing disability are yet to be issued, प्रोविजनल परमिशन में भी गारंटेड। जब तक 17A का ऑर्डर नहीं इशू हुआ है तब तक प्रोविजनल परमिशन दिया जा सकता है फॉर अपियरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इफ दे आर एलिजिबल अदरवाइज। द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द, ये तो बस वो थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए है, जब तक 17A इम्पोज नहीं हुआ है तो प्रोविजनल परमिशन दिया जा सकता है। नाउ रूल नंबर FR 18। FR 18, unless the President, in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, no government servant shall be guaranteed leave of any kind for a continuous period of exceeding 5 years. 5 years तक अथॉरिटी आपको लीव दे सकते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी या फिर जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, बट above 5 years only President can grant leave to a government servant. That is under FR 18. ओके, इसीलिए हम लोग कहते हैं 5 साल से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलता है, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस प्रेसिडेंट में ग्रांट लीव। ओके, नाउ चैप्टर 3 has also completed. We have now chapter 4, very important chapter, that is pay. That is pay. Let us start some. Pay starts from fundamental rule 19. Except in the case of personal pay guaranteed in the circumstance defined in rule 923A, the pay of a government servant shall not be so increased as to exceed the pay sanctioned for his post. जो भी जिस पद के लिए पे सैंक्शनड है वो मिलेगा पे। अगर कोई पर्सनल पे नहीं है तो विथआउट द सैंक्शन ऑफ एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू क्रिएट ए पोस्ट, बिना किसी सैंक्शनिंग अथॉरिटी के जो आपको डीडीओ हैं वो आपके पद के जो बराबर वेतन है वो आपको मिलता रहेगा, इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। That's under fundamental rule 19. Next is FR 20. In respect of any period treated as duty, duty कहाँ पे है? FR 96B. A government servant may be guaranteed such pay as government may consider equitable, but in no case exceeding the pay which the government servant would have been drawn had he been on duty other than duty under FR 6B. जो भी पीरियड ड्यूटी ट्रीट होता है तो जो एलिजिबल पे है गवर्नमेंट सर्वेंट को एज पर रूल फॉर दैट पोस्ट
that will be allowed, equal to that pay will be allowed. That is under Fundamental Rule 20. Fundamental Rule 20. Next is Fundamental Rule 21, that is deleted. After that, FR 21E, sorry, 21, sorry, FR 22 1A1. That is very important rule for pay fixation. Let us understand this. FR 21 deleted, FR 21, sorry, FR 22 1A1. The initial pay of a government servant who is appointed to a post on a time scale of pay is regulated as follows. This is FR 22(1), and after that FR 22(1A1). Save in cases of appointment on deputation to an ex-cadre post or to a post on ad hoc basis or on direct recruitment basis. The government servant shall have the option. देखिए, ex-cadre post, ad hoc post और deputation appointment हर जगह पे ऑप्शन है. The government servant shall have the option to be exercised within 1 month from the date of promotion, appointment, as the case may be, to have the pay fixed under this rule from the date of such promotion or appointment, or to have the pay fixed initially at the stage of the time scale to a new post above the pay in the lower grade or post from which he is promoted on regular basis, which may be refixed in accordance with this rule on the date of accrual of next increment in the scale of pay of the lower grade or post. In cases where an ad hoc promotion is followed by regular appointment without break, देखिए कोई ad hoc promotion हुआ और regular हो गया बिना break के, the option is admissible as from the date of initial appointment promotion to be exercised within 1 month from the date of such regular appointment. तो ऐसे केस में regular appointment के 1 month के अंदर भी ये दे सकते हैं. तो 1 मंथ का जो है आपका फिक्सेशन का ऑर्डर का देना डेट ऑफ प्रमोशन से और एमएस डेट ऑफ डीएनआई से, तो ये FR 22(1A1) के तहत आप दे सकते हैं. एड हॉक अपॉइंटमेंट में भी, एक्स कैडर में भी, अपॉइंटमेंट डिप्यूटेशन, हर एक केस में MSCP में भी दे सकते हैं विद इन 1 मंथ. तो ये हो गया. नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज इमीडिएटली बिफोर हिज प्रमोशन और अपॉइंटमेंट on regular basis to a higher post, drawing pay at the maximum of the time scale in the lower post. देखिए प्रमोशन हुआ और जो लोअर पोस्ट में मैक्सिमम था वो ड्रॉ कर रहा था टाइम स्केल में. His regular pay of the drawing the pay maximum in the time scale of lower post में maximum pay ड्रॉ कर रहा था. His initial pay in the time scale of the higher post shall be fixed at the stage next above the pay notionally arrived at by increasing his pay in respect of the lower post held by him on regular basis by an amount equal to the last increment in the time scale of the lower post to ₹100, whichever is more. ये 100 तो 6th पे कमीशन में था, अभी चेंज हुआ होगा लेटेस्ट में. तो इनके लिए जो है जिनका लोअर पोस्ट पे मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया था उनको एक पे नोशनली अराइव्ड, नोशनली जितना पे अराइव्ड होगा एट बाय इंक्रीजिंग हिज पे इन रिस्पेक्ट ऑफ लोअर पोस्ट हेल्ड बाय हिम ऑन रेगुलर अपॉइंटमेंट बाय एन अमाउंट इक्वल टू लास्ट इंक्रीमेंट इन द. तो जो इससे पहले जो लास्ट इंक्रीमेंट मिला था उतना और इंक्रीज कर देंगे. जिनका लोअर पोस्ट पे मैक्सिमम लिमिट में रीच कर गया है उनके लिए जो न्यू अपॉइंटेड पोस्ट है वहां पे एज पर पहले तो 6th पे कमीशन में 100 रुपीज था, पर लेटेस्ट बुक में देखना पड़ेगा. एनीबॉडी हैविंग लेटेस्ट बुक ऑफ 2021? यस, मेरे पास है सर. काइंडली उसमें देखिए तो FR 22(1A1) के बाद वाला जो पैराग्राफ है प्रोवाइडेड में, उसमें 100 रुपीज की जगह कुछ और लिखा है क्या? पहले पैराग्राफ के सर? नहीं, पहला नहीं, दूसरा पैराग्राफ में सर जो स्टार मार्क है वो वाला 2 के पहले वाला. हाँ, जहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोवाइडेड दैट
provided that where a government servant is immediately before his promotion or appointment on regular basis to a higher post, drawing pay at the maximum of the level of the lower post. His initial pay in the level of higher post shall be fixed at the cell equal to the figure so arrived at in the level of post to which promoted or appointed by increasing his pay in respect of the lower post held by him on regular basis by an amount equal to the last increment in the level of lower post, and if no such cell is available in the level to which he is promoted or appointed, he shall be placed at the next higher cell in that level. रुपी का नहीं है सर, जो आप रुपी का बोल रहे हैं ना वो इसमें नहीं है। हाँ अच्छा हाँ, तो ये डिलीट हो गया। देखिए यहाँ पे लेटेस्ट में ये बता रहा है कि जैसे मैक्सिमम रीच कर गया। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स से, देखिए यहाँ पे लेट अस कंसीडर लेवल 5 में है, मैक्सिमम है कितना, लेवल 5 में हमारा मैक्सिमम है 92,300 और इफ एनीबडी प्रोमोटेड फ्रॉम दिस मैक्सिमम पे फ्रॉम लेवल 5 तो कंसीडर लेवल 8 एंड मैक्सिमम का पे कितना पहुंच गया, हिज पे रिस्ट 92,300। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल 8 में जहाँ पे प्रमोशन हुआ है वहां पे जाने से पहले प्रीवियस इंक्रीमेंट के बराबर इनको हम लोग जोड़ देंगे। तो 92,300 से पहले इनका पे था 89,600, तो इसमें कितना का डिफरेंस है, $5,400 का डिफरेंस है। तो 92,300 में 5,400 ऐड कर देंगे, 00 97,700 या इसके इक्विवेलेंट हम लोग दे देंगे लेवल 8 में। लेवल 8 में 97,700 कहाँ पे है, देखिए 97,700 नहीं है, इसलिए दिस एम्प्लॉय विल गेट 99,800। ये केस बता रहा है यहाँ पे, प्रीवियस इंक्रीमेंट के बराबर हम लोग ऐड करके मैक्सिमम में और फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल में पुट अप करेंगे एम्प्लॉय को। ये कह रहा है दिस प्रोवाइडेड डेट वाला सेकेंड पैराग्राफ। सर 5,400 क्यों ऐड किए सर? क्योंकि वो डिफरेंस था प्रीवियस वाले के, जैसे पिछला इंक्रीमेंट जितना का मिला था ना। ओहो अच्छा, मतलब लास्ट टाइम उनको जितना इंक्रीमेंट मिला था उतना ही ये इसमें ऐड करना है। हाँ उतना ऐड करके देखिए 92,300 पे थे, इससे पहले वो 86,900 पे थे, तो डिफरेंस क्या है 5,400 का, इसलिए हमने 92,300 में 54 ऐड कर दिया, 97,700 हो गया और इक्वल टू और इसके बराबर लेवल 8 में प्रमोशन हुआ है तो लेवल 8 में हम दे देंगे। 97,000 नहीं है इसलिए हमने 99,000 था तो दे दिया वो। नेक्स्ट इज FR 2212 क्या है Sir. Yes. Before that, please could you explain next below rule? It's a short question they might be asking exam. Yes, next below rule. Okay. Let us understand. One is benefit under next below rule. The period of service rendered by the officers will be treated as service outside the ordinary line for the purpose of proviso FR 31. Now FR 22(3). FR 22(3) के तहत accordingly they will be entitled to pro forma promotion. देखिए कुछ ऑफिसर जो होता है ना वो डिप्रेशन पे चले जाते हैं, जैसे अपने यहाँ के बहुत सारा जो पीएमजी लेवल में, चीफ पीएमजी लेवल में है या फिर लोअर लेवल में भी जा सकते हैं, बट ज्यादातर अपर लेवल में ही जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ के कोई पीएमजी है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी किसी और डिपार्टमेंट में गए हुए हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी किसी भी फूड कॉर्पोरेशन, विजिलेंस कमीशन, कहीं भी है, किसी अदर रेलवे में किसी डिपार्टमेंट में हमारे पीएमजी जाके वहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। तो जैसे जो भी पीएमजी लेवल में ऑफिसर थे सारे ऑफिसर का प्रमोशन हो गया चीफ पीएमजी लेवल में। तो देखिए ये जो ऑफिसर थे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी
अदर जगह पे थे, इनका जो क्या बोलते हैं डिप्यूटेशन पे थे, तो इनसे लोअर लेवल के अधिकारी का प्रमोशन देने से पहले इनको हम लोग लोअर लेवल का अधिकारी का जैसे ही प्रमोशन होने वाला रहेगा, सेम में इनका ऑर्डर इशू करेंगे, सेम डेट में, जब लोअर अधिकारी का प्रमोशन होगा सेम डेट में, कि दिस ऑफिसर विल गिव एन प्रोफॉर्मा प्रमोशन। इसको हम लोग प्रोफॉर्मा प्रमोशन कहते हैं, और उसका ऑर्डर का कॉपी भेज दिया जाएगा वहां उस डिपार्टमेंट में। एंड सच ऑफिसर विल अलाउ द पे ऑफ प्रमोशनल पोस्ट, CPMG लेवल का पे वहीं पे ये अधिकारी ड्रॉ करने लगेंगे। इसलिए कुछ कंडीशन भी होता है, पहले तो वो वापस आ सकते हैं या फिर ज्वाइन कर सकते हैं चीफ लेवल का पोस्ट कहीं भी, अगर नहीं भी आते हैं तो वहां भी उनको पे अलाउ हो जाता है चीफ PMG लेवल में। तो इसी के कंडीशन में है नेक्स्ट बिलो रूल। अकॉर्डिंगली दे विल बी इंटाइटल टू प्रोफॉर्मा प्रमोशन इन देयर पेरेंट डिपार्टमेंट में। पेरेंट डिपार्टमेंट में उनको प्रोफॉर्मा प्रमोशन दे दिया जाता है नेक्स्ट लेवल में, जिसमें उनसे लोअर कैटेगरी मतलब उनसे जो जूनियर थे जिनका प्रमोशन दिया गया है, तो उनके सीनियर को भी प्रोफॉर्मा प्रमोशन दे दिया जाता है ऑन डिप्यूटेशन पे अंडर द नेक्स्ट बिलो रूल। इसी को हम लोग नेक्स्ट बिलो रूल में डिफाइन करते हैं। दे विल ऑल्सो गेट सीनियरिटी इन हायर पोस्ट टू विच दे वुड अदरवाइज बी इंटाइटल्ड। उनको नेक्स्ट हायर पोस्ट में भी प्रमोशन मिल सकता है अगर वो इंटाइटल्ड है तो, हैड दे नॉट गॉन एन एक्टिव सर्विस। एक्टिव सर्विस में नहीं भी आएंगे वापस, फिर भी उनको वहां पे जो सीनियरिटी है उनका सीनियरिटी लूज नहीं होगा अगर वो डिप्यूटेशन पे भी हैं तो इसी को हम लोग नेक्स्ट बिलो रूल में डिफाइन करते हैं। प्रोफॉर्मा प्रमोशन दे दिया जाता है अगर उनके जूनियर उनके प्रमोशन के एलिजिबल हैं और प्रमोशन ऑर्डर निकल रहा है, तो सीनियर को भी प्रोफॉर्मा प्रमोशन अलाउड करते हैं। ओके, नेक्स्ट बिलो रूल डिटेल में है सर, 95 पेज नंबर पे डिटेल में है नेक्स्ट बिलो रूल, अभी आगे आएगा FR 22 में नेक्स्ट बिलो रूल डिटेल में आएगा सर। हाँ अभी FR 22 तो FR ये तो पे का है बहुत लंबा चैप्टर। हाँ इसमें 33 सब रूल 33 में है नेक्स्ट बिलो रूल, और स्टेपिंग अप, बंचिंग इफेक्ट ये सब है, डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं, डिटेल्स में आएगा तो और इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है, हाँ सर वही डिटेल में आएगा, यही मैं बोल रही हूँ कि आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ आगे है डिटेल में टॉपिक है इसके बारे में। हाँ ओके नेक्स्ट इज FR 22। FR 22 का 2 है, when the appointment to a new post does not involve such assumption of duties of higher responsibility or greater importance। देखिए यही ये है, LSG में आप कहते हैं ना कुछ नहीं मिलता है LSG प्रमोशन होने पे MSCP 1 के बाद, बट ये हमारे यूनियंस का कमजोरी है, बिकॉज सभी लोग जानते हैं, एवरीबडी नोज दैट LSG हैविंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन द PA कैडर, बट फिर भी गवर्नमेंट ऑर्डर इसके लिए नहीं निकाल रही है। इफ इट इज ऑर्डर्ड दैट LSG पोस्ट हैविंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन PA कैडर, देन 1 इंक्रीमेंट विल बी गारंटेड टू सच ऑफिशियल। यहाँ पे लिखा है FR 2 में, सॉरी FR 22(1)(2) में, when the appointment to a new post does not involve assumption of duties and responsibility of greater importance। अगर ग्रेटर इंपॉर्टेंस का नहीं है तो, ग्रेटर इंपॉर्टेंस का है उसके लिए 1 इंक्रीमेंट है, बट ग्रेटर इंपॉर्टेंस का नहीं है, he shall draw as initial pay the stage of the time scale which is equal to the pay in respect of the old post held by him on regular basis। अगर पहले से ही वो जिस पोस्ट में प्रमोशन हुआ है MSCP के थ्रू आ चुका है और ग्रेटर इंपॉर्टेंस का नहीं है पद, और देयर इज नो सच स्टेज, द स्टेज नेक्स्ट अबव हिज पे in respect of the old post held by him on regular basis। Let us see once again, when the appointment to a new post does not involve such assumption of duties of higher duties and responsibility of greater importance, he shall draw as initial pay the stage of the time scale which is equal to his pay in respect of the old post held by him on regular basis। जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पद नहीं है तो आपको ओल्ड पोस्ट जो था उसी के बराबर पे मिलेगा और इक्वल टू उसी, नो बेनिफिट ऑफ पे विल बी एडमिसेबल। और इफ देयर इज नो सच स्टेज, द स्टेज नेक्स्ट अबव हिम, और अगर दूसरे पे लेवल में दिया जा रहा है तो सेम स्टेज दिया जाएगा, अगर नहीं है सेम स्टेज का तो उससे अबव दिया जा सकता है। Provided that where the minimum pay in the time scale of a new post is higher than his pay in respect of the old post held by him regularly, he shall draw the minimum as the initial pay। अगर मिनिमम पे नहीं है तो हायर स्टेज में जो मिनिमम पे होगा वही मिलेगा। क्लियर? प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन ए केस वेयर पे इज फिक्स्ड एट द सेम स्टेज, पे फिक्स हुआ है सेम स्टेज में,
he shall continue to draw that pay until such time as he would have received an increment. जब तक increment नहीं मिलेगा same pay draw होगा in the time scale of the old post. In case where the pay is fixed at the higher stage किस कंडीशन में होगा? जिस लेवल में प्रमोशन हुआ है उसमें मिनिमम प्रीवियस पोस्ट के बराबर पे नहीं है तो इनिशियल पे ग्रांट होगा, हो सकता है वो ज्यादा पे हो. Where pay is fixed as the higher stage, he shall get his increment on completion of period when an increment is earned in the time scale. फिर after at least 6 month के बाद ही उनको इंक्रीमेंट मिलेगा. ये सारा जो FR 21(2) के तहत जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इसमें प्रमोशन ऐसे पद पे मिला है जिसमें हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इसके लिए कोई बेनिफिट नहीं होता है. तो उसी के बारे में डिफाइन किया गया है कि अगर लेवल चेंज भी होता है फिर भी सेम पे देंगे. अगर सेम पे अवेलेबल नहीं है तो जिस उस पे से ज्यादा जो अवेलेबल है मिनिमम में वो हम लोग अलाउ कर देंगे, बट नो हायर पे विल बी अलाउड फॉर सच केस. On appointment on a regular basis to such a new post other than on a ex-cadre post on deputation, the government servant shall have the option to be exercised within 1 month. देखिए न्यू पोस्ट पे अगर रेगुलर बेसिस पे जा रहे हैं अदर देन एक्स-कैडर पोस्ट, एक्स-कैडर पोस्ट में डिप्यूटेशन, फॉरेन सर्विस, ये सब मतलब अपने कैडर से बाहर जो है, इसके अलावा जो भी न्यू पोस्ट है अपने कैडर में और रेगुलर प्रमोशन पे जा रहे हैं तो यू शुड हैव ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज्ड within 1 month from the date of such appointment for fixation of his pay in the new post with effect from the date of appointment to the post or with effect from the date of increment in the old post. तो ये ऑप्शन रहता है within 1 month के लिए. Next is sub rule 3. When appointment to the new post is made on his own request. अब देखिए न्यू पोस्ट पे आप ओन रिक्वेस्ट पे अपॉइंटमेंट करेंगे. सब रूल ए ऑफ रूल 15 ऑफ द सेड रूल्स. The maximum pay in the time scale of the post is lower than his pay in respect of the old post held regularly. He said draw the maximum as his initial pay. देखिए employee will return to his original post after promotion even in his own request. आप रिक्वेस्ट पे भी वापस आ सकते हैं. तो रिक्वेस्ट पे वापस आने का हायर प्रोमोशनल पोस्ट से बिलो पोस्ट पे 2 कंडीशन है यहाँ पे. एक है कि प्रीवियस 2 years से पहले आप वापस आ जाते हैं within 2 years. नेक्स्ट है आफ्टर 2 years. 2 years is the probation period and if you return before the probation period then you will get your pay in the previous post which was previously given. That is your lien also. lien भी आपका है वहाँ पे तो वो मिलेगा. But after 2 years your lien has abolished. आपका lien समाप्त हो गया and your lien starts in the new promotional post after 2 years and again you write to the competent appointing authority that I want to revert back to my older post. Then here is a special case. This case will be transferred to the department or ministry. If ministry will agree, this is the exceptional circumstance. In this case you will be allowed the pay which you get in the new post. जो आपका promotional post पे जो higher pay मिल रहा था वही पे आपको मिलेगा but your level will be previous level. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे कोई पीए कैडर में था 9 years का सर्विस हो गया था. लेट उनका पे था 33,300 और वो AAO बन गए तो उनका वहां पे कितना हो गया 47,600. आफ्टर 2 years द एम्प्लॉय पे वाज 50,500 पे हो गया. 2 years का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया एंड द एम्प्लॉय अप्लाइज टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी that I want to revert back to my PA cadre and the pay of the employee is 50,500 and probation is completed. Probation complete hai. So this application of the authority will transfer to the ministry or department. Ministry के पास जाएगा. If ministry agrees with the circumstance and condition, then he is allowed to revert to the PA cadre in level 4. But his pay will be 50,500. See here, where is 50,500 in level 4? 50,400 है. 50,400 and rupees 100 will be payable as personal pay. Means total pay will be same 50,500 but here level is 50,400. This pay will be payable to the employee. So this is the special order of the government that in this condition a special attention will be payable. In exceptional circumstance this should be done. प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद अगर एम्प्लॉय रिवर्ट बैक के लिए एप्लीकेशन करता है
तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में, बहुत कम सर्कमस्टांस में वो एक्सेप्ट होता है। बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन, मान लीजिए 2 साल से पहले था, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 साल हुआ था, तो हिज पेज 49,000, बट ही कम्स बैक, देन ही विल पेड ओनली हिज प्रीवियस, दैट इज 33,300, but his lien is there, so increment will be given to the employee, and the pay is 34,300 will be applicable to the employee. The case is clear? सर फर्स्ट केस में हम जब रिवर्ट किए तो हमें चाहिए था कि 50,500 का इक्विवेलेंट कुछ मिले, लेकिन हमें मिला 50,400। तो फिर हमने उसको क्यों लिया? उसका अगला वाला भी तो ले सकते थे, क्योंकि वो तो 50,500 से थोड़ा, हाँ, यहाँ पे उससे ज्यादा नहीं देना है। जो डिफरेंस 100 का है ना, 100 हम लोग पे करेंगे एज पर्सनल पे, मींस टोटल 50,500 ही देंगे, और पर्सनल पे 100 का देंगे टिल द पीरियड ही विल गेट द इंक्रीमेंट मिल जाएगा, तब तक हम लोग 100 का उसको पर्सनल पे देंगे। 50,000 वेयर इज 50,400 plus 100 personal pay, total is 50,500, and the employee get next increment, that is 51,900, then this personal pay 100 is abolished, ये हट जाएगा। तो ये है हमारा। तो सर इसका फंडा ये है कि कोई भी एम्प्लॉय लोअर पोस्ट या हायर पोस्ट में जाता है, तब हम उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट का जो भी फिगर आएगा उसका इक्विवेलेंट जब ढूंढेंगे नेक्स्ट लेवल में, तो एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं मिलेगा, तो उससे जो थोड़ा सा ज्यादा होगा उसे दे देंगे। लेकिन जब रिवर्ट करेंगे उसका उल्टा होगा। रिवर्ट जब करेंगे, जिस हायर पोस्ट में जिस लेवल में था, जितना मिल रहा था उसको पे, उसका इक्विवेलेंट ढूंढेंगे लोअर लेवल में, और जो भी कम होगा उतना ही कम देंगे, और डिफरेंस अमाउंट को पर्सनल पे के तौर पे देंगे। हाँ, बट इसमें यह है कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, बट ये एक्सेप्शनल है। आज तक मैंने ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं देखा जिसको रिवर्ट होते हुए, बट ये हो सकता है स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के थ्रू, बट ऐसा होता नहीं है। जनरली 2 इयर्स से पहले ही हो जाता है, नहीं तो गवर्नमेंट अपना स्पेशल ही करती है। बट जनरली अगर कोई रिवर्ट होना है तो 2 इयर्स से पहले हो जाता है। जनरली अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी कर सकते हैं बिफोर 2 इयर्स, बट आफ्टर 2 इयर्स वेयर ही इज कन्फर्म्ड इन द हायर पोस्ट, देन ओनली मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विद द स्पेशल कॉन्करेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, this will be done. Very lengthy process, this is not this is very hard process, okay, but this is a condition under FR15। FR15 के तहत बहुत लोग आए हैं AAO से within 2 years। 2 years के बाद कोई नहीं आया, within 2 years ऑर्डर इशू हुआ था, उसमें काफी 2-4 लोग आए थे। Okay, next is 3B। If the condition prescribed in clause A are not fulfilled, he shall draw as initial pay on the minimum on the time। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं है तो उनको मिनिमम पे मिलेगा। Provided that both the cases covered by clause A and in cases other than the case of re-employment after resignation or removal or dismissal from the public service covered by clause B। held previously, held substantively or officiated in the same post, a permanent or a temporary post on the time scale। ये सारा कंडीशन चेक करना है, परमानेंट पोस्ट है, टेम्पोररी है, टाइम स्केल में है, पोस्ट सेम है। A permanent post or a temporary post, including a post in a body incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the government, or an incidental or an identical time scale, or is appointed subject to the fulfillment of the eligibility condition as prescribed in the relevant recruitment rules to a tenure post on the time scale identical with that of another tenure post which he had previously held on regular basis। तो ये सारे कंडीशन में है, ये सारा कंडीशन देखेंगे। आफ्टर दैट this will be allowed। Now let us continue tomorrow from point number 2। Okay, everybody is clear up to this? Then continue tomorrow from this point 2। Okay, Okay, thank you, good night। Thank you very much, sir. Good night, sir. Good night। Thank you, sir।